तो दोस्तों, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी को समझ लिया हमने कि यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है। तो हम लोग एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं कि प्रीवियस सालों में सीबीएसई ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन किया जाए। ये क्वेश्चन आप देखिए, सवाल ये पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the system of equation x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky is equal to 15 has unique solution and second has no solution। ये सवाल दो बार पूछा गया है। ये सवाल सीबीएसई 2001 में भी पूछा गया था एंड 2019 में भी पूछे गए। सिमिलर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमारे लिए जो हमारा सवाल दिया गया, वो जो हमारा सेट ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन दिया गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So we will write that given कि ये और ये दो इक्वेशंस हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1 बाई a2 का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि a1 कितना है। a1 है 1 और a2 कितना है, a2 है 3। b1 है 2, b2 है k, c1 है 5 एंड C2 है 15। ओके, सो A1 हो गया 3, A2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, A1 है 1, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू है K एंड C1 की वैल्यू है 5 एंड C2 की वैल्यू है 15। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं इस चीज को समझने के लिए कि इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होने वाली है। So for unique solution, अब आप देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसकी क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहां अगर मैं इनकी वैल्यूज रख दूं तो ये हो गया 1 बाई 3, इट शुड नॉट बी इक्वल टू k बाई 2 बाई k। और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इट मीन्स k should not be equal to 6। So this is the condition or this is the value of k for which the given set of equation will have a unique solution। It means k may have any value other than 6। आप 6 उसकी वैल्यू ना रखें, उसके अलावा आप उसकी कोई भी वैल्यू रख सकते। ओके, now we will solve it for the second question, that is no solution। Case of no solution। Okay, so what is the condition for no solution, a1 by a2 it must be equal to b1 by b2 and it must not be equal to c1 by c2। okay, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा। ये हो जाएगा 1 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई के इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 15। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आई विल से दैट 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई के एंड 2 बाई के इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 15। अब मैं इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करूंगा। सो व्हाट आई विल गेट दैट k इज इक्वल टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल टू 6।
Now observe this result. One relation or one condition is saying that k should be equal to 6, whereas another is saying that k should not be equal to 6. So both the conditions are contradictory. They cannot exist simultaneously. There cannot be any number which is equal to k as well as at the same time which is not equal to 6, which is equal to 6 and which is not equal to 6. So by observing these two, we can say that there is no value of k, there is no value of k for which the given system of equations will have no solution. ओके तो यहाँ पे हमारा सवाल तो खत्म हो जाता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्वेशन वी शुड चेक कि व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 6 तो हमारा आंसर आता है कि द सिस्टम शुड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, as well as we are saying that there is no value of k for which the system can have no solution. So what happens when k is equal to 6? If k is equal to 6, from here you can observe that it will be 1 by 3 is equal to 1 by 3 and is equal to 1 by 3. So if k is equal to 1 by 6, k is equal to 6, then this set of equation will have many solutions. So actually for all values of k, maybe it is 6 or maybe it is not equal to 6, the system is consistent. It may have a unique solution for the values where k is not equal to 6, or it may have many solutions for the condition when k is equal to 6. However, there is no condition when the system will have any solution, this system will have no solution. Okay, तो यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग से हम ये समझ पाए हैं कि what is the linear equation in two variable, what is the condition for the consistency, and which type of questions are being asked in the examination. Previous years में कैसे पूछे गए, एक बार इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार और देख सकते हैं कि किस तरीके का सवाल पूछा गया था. सवाल ये सिंपल था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky is equal to 15 has unique solution and has no solutions. ठीक है, ये सवाल दो बार पूछा जा चुका है, 2001 में, 2019 में. कौन जानता है अगले साल 2026 में भी सिमिलर क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए या सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए. ओके, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद हमने इक्वेशन को बाई ऑब्जर्वेशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज लिख दी. उसके बाद जो हमें पहला सवाल यूनिक सॉल्यूशन का दिया गया था, हमने उसकी कंडीशन रखी, सॉल्व करा और k की वैल्यूज हमने बता दी. सिमिलरली नो सॉल्यूशन के केस के लिए भी हमने इक्वेशन रखा, कंडीशन रखी, वैल्यूज रखा, सॉल्व किया. बट नो सॉल्यूशन के केस में हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो k की जो वैल्यूज आ रही है बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 से हमें ये पता चल रहा है कि k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, जबकि b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 से हमें ये पता चल रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए. तो एक के साथ दोनों कंडीशन नहीं हो सकती. सो वी हैव रिटन दैट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन. देयर इज नो वैल्यू ऑफ k for which this system of equation will have no solution. It means this system will always have solution. It may be unique solution or it may be that it has many solutions. So system is always consistent system. Okay.